May I come in, sir? Come in. Good afternoon, sir. Please be comfortable. Sit down, Shikha Ranjan. Thank you, sir. You are Shikha Ranjan. Yes, sir. Well, now you find that I'm a student of economics. Yes, sir. Well, current economic situation of India, have you applied your mind? Sorry, sir. Pardon. Current economic situation in India, Yes, sir. you are aware of it somewhat? Yes, sir. Now, you see, I find lot of praise of economic growth of India. Yes, sir. World is facing economic crisis, but India is in good shape. Yes, sir. My feeling is this is all wrong propaganda and a bubble. India's unemployment is very high. Retail inflation is high. I hope you understand retail inflation. Yes, sir. Okay. Rural economy is being survived by free food rates. So don't you think that all these claims are bogus and the bubble is going to burst? Can you react? Sir, as far as I am concerned about this, India is on right path as we are fifth largest economy in the world right now and third in purchasing power parity, and as well as where unemployment is concerned, we are working towards it, and we are also working towards inflation also. Inflation is because of international scenario, because of 3 C's, COVID, crisis and climate change. This is faced by all over world. You are optimistic. Okay, now you used the word purchasing power parity. Now, Yes, what sir. is it? For a layman like me, please explain what is it? Sorry, sir. Right now, I'm not able to. But you recall. used the word purchasing power parity yourself. Yes, sir. I have read it in economic survey, recent But Indian what is it? economic survey. You don't know. Okay. Now, let me see, there is a G20 meeting going on it. Yes, sir. India is making all-out efforts. What benefit is likely to come to India? Sir, as G20 gives India platform to be a global diplomat. G20 is a union of 19 countries and European Union. G20 addresses the issues which our developing countries are facing. As a leader, as a chairman of G20, India has the immense opportunity to address the global scarcities which are faced by the world, such as COVID, aftershocks of COVID, and climate change issues, and the Russia-Ukraine war crisis. Okay, you didn't use the word jargon purchasing power parity. I'm using two other phrases. Sustainable development Yes, and sir. growth with equity. Have you heard of these words? Yes, sir. Can you explain both of them? Sir, sustainable development means that development in which resources are not used fully in this way. They are used in such a way that we can pass it to the next generation also. And growth with equity means it addresses the inclusive development, means the overall development and equal proportionate development of the society. Okay, now you are going to be an officer in industry department. Yes, sir. Now, what are the constraints in growth of industries in Bihar? Very textbook style question. Constraint in growth of industry in Bihar that we have used. Yes, sir. Sir, in a historical point of view, we have faced many issues. The biggest one was freight equalization policy, which was also noticed by President Pranab Mukherjee. In that, Bihar not got the opportunity to establish heavy industries in Bihar. And right now, there are many issues regarding land, infrastructure, and labor standards problem. In Bihar, we are facing problems of land. Land acquisition for companies are very tough, and because of so many rules and regulations, and capital issues are there, and we are not having that much skilled labor. You used the word land acquisition. See, generally I draw from you yourself. Look, why do we need land? Why do companies for setting up industry need land acquisition? They can purchase it from the farmers itself. What is the benefit in land acquisition? Let me know. Sir, Land acquisition is costly also. What is the benefit? Why do we want land to be acquired? Sir, land is one of the very essential part of setting any industry. And in Bihar,
more than 80% peoples are in agriculture and related works. So land is a very sensitive topic in Bihar. That's why land acquisition problem exists. No, you could get my question. I have a land here. The company identifies this land they want. They can purchase it from the farmer directly. Why do they ask the government to acquire it? That is the theoretical question. What is the benefit in it? Sir, You can ask from the farmers, I will pay you this much money, sell me the land. Instead, the company goes to the government, asks the government to acquire it. What is the benefit? Sir, farmers are not willing to sell the land here because their livelihood is dependent on land only, because they are involved in agriculture. Okay, there is something you have told. Now let me something. Have you heard the term startups? Yes, sir. What are the startup and what special benefits are for the startups in the government's scheme? Sir, startups are those small setups which are initiated by any individual, like Ola, example, and government provides financial assistance in this. Some successful startups which has grown big in India. Sir, like Name some startup. They have become unicorn also. Must have heard the word unicorn. yes, sir, unicorn. So some successful startups which have become unicorn. Sir, like Unacademy. An academy, okay, your coaching institute or in Yes, sir. Byju's. okay. Only coaching institute. Proper, of course, they are also industry. Other some industry which have grown. You have any idea? No. Good, please, Mr. Samant. When you did your graduation, So 2016. 2016, क्या कर रही हो उसके बाद से? What have you been doing since 16? Sir, after that I am preparing for civil services. What happened? So, क्या sir, हुआ? Sir, I'm not able to hear. क्या हुआ? सर उसके बाद सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रही हूँ और एक बार मैंने इंटरव्यू भी दिया है किस चीज का? 65th BPSC का. अच्छा ये बताइए कि ये ट्रेड डेफिसिट इंडिया चाइना के बीच में क्या है? सर ट्रेड डेफिसिट उस समय होता है जब हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में बैलेंस नहीं हो पाता. चाइना के साथ हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट हम बहुत कम करते हैं, जिस वजह से हमारा ट्रेड डेफिसिट हो जाता है. सर मोर देन आई थिंक 80 मिलियन से ज़्यादा हमारा अभी trade कितना है deficit. हमारा उनके साथ ट्रेड? सर हम बहुत अच्छे से तो रिकॉल नहीं कर पा रहे, लेकिन ज़्यादा ही मोर देन 50% हमारा उनके साथ ट्रेड डेफिसिट हो जाता है जितना हम ट्रेड करते हैं उसका. ये गैट और WTO में क्या डिफरेंस है? कम से कम 2 डिफरेंस बताइए. सर गैट जो है वो पुरानी इंस्टीट्यूशन है और सॉरी सर रिकॉर्ड. इकोनॉमिक्स से आपका चूंकि ऑनर्स है ना, यस सर. और ये इंस्टीट्यूशन नहीं है गैट. अच्छा इंडो पैसिफिक और पैसिफिक ये 2 टर्म है. हम इंडो पैसिफिक बोलना क्यों प्रेफर करते हैं? पैसिफिक की तुलना में हम इंडो पैसिफिक बोलना क्यों प्रेफर? और सर पैसिफिक अगर हम कहते हैं तो वो बेसिकली जो पैसिफिक ओशियन से रिलेटेड जो रीजन है, जो कंट्रीज हैं, सिर्फ उनको हम सिग्निफाई करते हैं. लेकिन अगर हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं तो इंक्लूडिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि एक वाइड एस्पेक्ट प्रोवाइड करता है. और आज के टर्म में जो कंपनीज हैं जैसे यूएस क्या फायदा है कंट्रीज हैं, सर बेसिकली इंडिया के लिए फायदा है और ये वर्ल्ड के लिए भी फायदा है कि वर्ल्ड जो है बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए, वो लोग चाइना को काउंटर करना चाहते हैं, जिसके लिए इंडिया उनके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उभर के आ रहा है. और इंडिया के लिए सर ये फायदा है कि हम एक वर्ल्ड लीडर के रूप में चाइना को अपने कैसे काउंटर कर देंगे? इस टर्म से कैसे काउंटर करेंगे? सर चाइना को हम मिलिट्रली यहाँ पे नहीं, इस टर्म से कैसे कर देंगे? इंडो पैसिफिक से कैसे कर देंगे? सर बेसिकली इस टर्म से नहीं, लेकिन इसके अंदर जो भी क्वालिटीज हैं क्या उससे क्वालिटीज है? जैसे जैसे मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो बिग कंट्रीज हैं वो अपना यहाँ पे मिलिट्री सेटअप कर रही हैं. आप जानती हैं इसके बारे में या फिर इधर उधर घूम रही है? अच्छा ये बताइए, मल्टीलेटरल, बाइलेटरल एंड प्लूरिलेटरल, इस तीनों में क्या डिफरेंस? सर मल्टीलैटरल और बायलैटरल तो
थोड़ा बहुत आइडिया, प्लूरीलैटरल का उतना आइडिया सुना नहीं। नहीं सर। अच्छा, यूरोपियन यूनियन और अदर ब्लॉक्स ऑफ द वर्ल्ड, इसमें क्या डिफरेंस है और कैसे यूरोपियन यूनियन जो है यूनिक है? सर यूरोपियन यूनियन जो है वो 19 कंट्रीज का एक ग्रुप है। सॉरी सर, सो सॉरी सर। यूरोपियन यूनियन जो यूरोप है वहाँ के कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसमें से ब्रिटेन निकल चुका है अब, और वो लोग जो हैं हर चीज़ अपना साथ में करते हैं। उनका एक ही करेंसी होता है यूरो, वो उसी एक चीज़ को फॉलो करते हैं। डिफरेंस क्या है दूसरे ब्लॉक्स के साथ? क्या डिफरेंस? क्योंकि इकोनॉमिक्स की है और काफी इंपॉर्टेंट चीज है, सब इकोनॉमिक्स से ही जुड़ा हुआ, कुछ भी आपसे इधर उधर का नहीं पूछा गया। सॉरी सर। हॉबी आपका क्या है? सर गार्डनिंग ऑफ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या है ये? सर वैसे प्लांट्स को हम लगाना पसंद करते हैं जिनमें फूल नहीं आते, जैसे जैसे अरेका पाल्म हो गया, एलोवेरा, फिर स्नेक प्लांट, ये सब। क्या फूल क्यों नहीं लगाती क्या? सर क्योंकि फूल वाले पौधों में ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है और उतना समय नहीं मिल पाता। अच्छा सर। अच्छा, सीखा आपने पटना विमेंस कॉलेज से किया है ना? कब किया आपने? 2016 में। 16। तो उससे अब तक क्या कर रहे हैं? सर प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज। तो सफलता नहीं होने का वजह? सर शायद मेरी कमी रही होगी कहीं ना कहीं। कुछ ऐसे स्टेप्स तक गए हैं आप इससे पहले? यस सर, एक बार 65th इंटरव्यू दे चुके हैं। 65 नहीं होने का वजह? सर मार्क्स कम थे मेरे। मार्क्स कम थे? यस सर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट पे आपका कमांड कम रहा होगा। यस सर। ठीक है, टेल मी वन थिंग कि नेसेसरी स्टेप्स फॉर इंडस्ट्री डेवलपमेंट। इंडस्ट्री को डेवलप करना है बिहार में, आपको एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर बना दिया गया, क्या क्या आपके स्टेप्स होंगे? सर पहले तो जो मेरे स्टेप्स होंगे कि जो रनिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके प्रॉब्लम्स पे हम ध्यान दें कि वो किस किस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, और दूसरे होंगे कि न्यू इन्वेस्टर्स को हमें यहाँ पे इनवाइट करना है, तो उनको बिहार सरकार जो है बहुत सारी योजनाएं ला रही हैं, लेकिन शायद अवेयरनेस ना हो इसका, तो अवेयरनेस फैलाना चाहेंगे हम, और जो भी बिहार सरकार उन्हें सुविधाएं दे रही हैं उसके लिए हम काम करेंगे। इसी टर्म में एक बियाडा टर्म है, ठीक है, ये क्या है? सर बियाडा, यस सर, ये बिहार गवर्नमेंट की एक PSU है जो कि इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट करने के लिए काम करती है। जैसे अभी उन्होंने रिसेंटली 3 पॉकेट्स बनाए हैं, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, और जहाँ पे उन्होंने लैंड को फाइंड आउट किया है कि कहाँ पे इंडस्ट्रीज हम लोग सेटअप कर सकते हैं। तो मुजफ्फरपुर चुनने का कोई वजह? सर मुजफ्फरपुर में पहले से भी बहुत सारे इंडस्ट्रियल स्कोप्स हैं, जैसे पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री वगैरह, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट का वहाँ पे सर बहुत अच्छा स्कोप है और लैंड भी है वहाँ पे। व्हाट इज GI टैग? सर GI टैग फुल फॉर्म इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ये एक पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाता है जो बेसिकली उसी ज्योग्राफिकल लोकेशन पे ही फाउंड आउट होता है, उसकी पहचान वहीं पे होती है खासकर। ये MSME क्या है? सर माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं ये उन्हीं के अंतर्गत आता है। तो बिहार के इंडस्ट्री को कैसे बेनिफिट होगा इसमें? सर बिहार में MSME का बहुत ज़्यादा ही स्कोप है। यहाँ पे हम लोग पॉकेट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे एग्रो बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड हो गया, उसके बाद यहाँ पे इको टूरिज्म का है, तो MSME को बहुत फायदा है सर। और बहुत अच्छा एक एग्जांपल है हमारे यहाँ पे जीविका का, वो MSME के अंडर ही बहुत अच्छा काम कर रही हैं। जैसे शराबबंदी के बाद एक नीरा प्रोडक्ट आया है, तो सर वो बहुत अच्छा ही एक मैं तो ये समझता हूँ कि शराबबंदी सिर्फ एक ऑन पेपर है, ये धड़ल्ले से चल रहा है, क्या आपकी राय है इसमें? सर शराबबंदी बहुत लैंड पे भी है, लेकिन सर कुछ प्रॉब्लम्स हैं हमारे यहाँ पे कि हम ऐसे स्टेट से घिरे हुए हैं जहाँ पे शराबबंदी नहीं है और वहाँ से मूवमेंट होता है लोगों का, तो सर तभी थोड़े फॉल्ट्स हो जाते हैं। लेकिन शराबबंदी बहुत हद तक बिहार सरकार इसमें सक्सेसफुल रही है और बहुत सारी कंपनीज हमारे यहाँ पे इसको स्टडी भी कर रही हैं। 2 ऐसे प्रोजेक्ट का नाम बताइए जो बिहार गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा हो इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से।
सर बिहार इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2016 और सर लास्ट ईयर ही आया है लेदर एंड हैंडीक्राफ्ट्स प्रमोशन पॉलिसी. Do you know about ethanol project? सर सॉरी. Ethanol project? यस सर. What is it? Sir, ethanol project is basically to establish ethanol factories in Bihar, and ethanol is a substance which is blended with petrol to cut the carbon consumption. Okay, how much percentage we are adding it? So right now we have achieved the target of 10%, and our next target is to blend 20% of it. Do you know about what is surrogacy? Surrogacy. Surrogacy. Yes, sir. Sir, surrogacy basically to rent different women to give birth to child. Okay. अभी हम लोग ये सुन रहे हैं कि यूनिसेक्स मैरिज आजकल बहुत न्यूज में है, ठीक है? तो एज ए वुमेन आप क्या इस पे आपका विचार है? इज इट राइट और रॉन्ग? सर ये तो अंडर जुडिशियल ट्रायल है. अगर मेरा पर्सनल विचार हो तो सर ये अपनी सबकी अपनी फ्रीडम है, लिबर्टी है. ठीक है. तो आपका इस पे क्या विचार है आपका खुद का? ये सही है या गलत है? या फिर इसको लीगल घोषित कर देना चाहिए? सर कुछ कंट्रीज में तो ये लीगल है. ये तो हमारी जुडिशियल सिस्टम में डिसाइड करेगी कि ये लीगल होना चाहिए या नहीं, वाइडर पर्सपेक्टिव को देखकर. ठीक है. वन लास्ट क्वेश्चन. ये वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है. अब बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे जो लास्ट डिसीजन ये हुआ कि ये जो वुमेन एम्पावरमेंट का मिसयूज हुआ है. तो क्या आपका परसेप्शन है इस पे? सर जहाँ तक मेरा परसेप्शन है ये चीज़ अच्छी चीज़ों के लिए ही यूज़ होना चाहिए, क्योंकि जो 50% पॉपुलेशन का है उसका हर जगह भागीदारी बहुत इम्पॉर्टेंट है. और ये अपनी अवेयरनेस की बात है कि विमेंस को इस चीज़ के लिए अवेयर होना चाहिए, उस चीज़ को अच्छी चीज़ों में ही यूज़ करना चाहिए, अपने एम्पावरमेंट के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए. ओके, थैंक यू. ठीक है सर. गुड शिखा, आपका इंटरव्यू ओवर हो गया, आप जा सकती हैं. थैंक यू सर. थैंक यू.